Good morning, students. Welcome to Talent Blazer, India's latest platform that will provide all the solutions for your UGC net related issues and problems. So, I welcome you to the Unit 6 in the Paper 2 Commerce. The subject code for the same is 08, and we are covering Unit 6. And I have made three more videos previously on Unit 6. So, if you haven't watched those videos, I'll recommend to watch those and then start watching this one. And if you do like the video, do leave a like on the video as well because most of you are watching the video and the views and like ratio is pretty low. And if you're liking the video, please do leave a like, and that is like kind of motivation for all the teachers who are working. So how we will be getting to know that you are liking the content that we are providing at Talent Blazer. Now what we have to study in today's class. In the last class, we started with HRM, Human Resource Management. I hope most of you are clear with what HRM is. So now in this class, we'll start with recruitment. That's one of the main things that you have to prepare for your UGC net, and that is an important part of Unit 6. Comes under HRM, Human Resource Management. So recruitment, right? Recruitment, what is recruitment? Now there is a myth along with a lot of people that recruitment is basically selection. They are confused between recruitment and selection. Both the terms are very different. Recruitment and selection are very different. Do not get confused by them. Right? Recruitment एक अलग चीज है, selection एक अलग चीज है. Recruitment is a positive process. आप you put out an application that we have a vacant position in our organization and we are inviting applicants. So that is recruitment basically. आप invite करते हो applicants को, आप application invite करते हो तो बहुत लोग apply करते हैं, right? पर आप select किसी एक या 10 लोगों को, जितनी आपकी requirement है उसको करते हो. तो recruitment एक positive process है जिसमें बहुत लोग apply करते हैं. Selection एक negative process है जिसमें you weed out which are not good enough for your job, your particular opening. तो उसमें से आप लोगों को निकालते हो और परफेक्ट कैंडिडेट को चूज करते हो. दैट इज सिलेक्शन. सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस. आई होप ये सबको अब समझ आ जाना चाहिए दैट रिक्रूटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन. सो अभी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों सेम चीज़ है. नहीं, दोनों सेम चीज़ें नहीं है, बहुत ही डिफरेंट है दोनों चीज़ें. हाँ, एक ही चीज़ का पार्ट है कि आपको एम्प्लॉयमेंट, आपकी लेट सपोज कोई वेकेंसी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीट वेकेंट है, उसको फिल करने का ही जरिया है. पहले आप रिक्रूटमेंट के थ्रू या एप्लीकेशन इनवाइट करते हो, सिलेक्शन के थ्रू उन एप्लीकेशन में से जो परफेक्ट लगता है कैंडिडेट उसको सिलेक्ट करते हो, राइट? सो नाउ ये रिक्रूटमेंट होती कब है? जब आप एचआर प्लानिंग प्रोसेस कर लेते हो. सो वंस यू हैव कंप्लीटेड एचआर प्लानिंग प्रोसेस टू डिटरमाइन हाउ मच ह्यूमन रिसोर्स यू नीड्स. तो ऐसा तो है नहीं कि लेट सपोज आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इन गुड़गांव एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इन नोएडा. तो वो नोएडा में एक्सपेंशन की बात सोच रहे हैं. तो उन्होंने सोचा है कि इतने लोगों की जरूरत होगी. दैट्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. दैट कि इतने 100 लोगों चाहिए, 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी व्हेन वी आर एक्सपैंडिंग अ न्यू ऑफिस इन नोएडा. अब हमें 100 लोगों की ज़रूरत है, तो हमें रिक्रूट भी तो करना पड़ेगा. ज़रूरत है तो अपने आप फुलफिल तो नहीं हो जाएगी. लोग अपने आप तो नहीं आ जाएंगे कि बिल्डिंग खड़ी होगी तो चलो जाके नौकरी मांग लेते हैं. ऐसा तो नहीं होगा. सो यू नीड टू रिक्रूट पीपल फॉर दैट. तो वहाँ पे आपको फाइंड करने पड़ेंगे potential candidates for actual or anticipated organization vacancies. So recruiting is the process of finding potential candidates for actual or anticipated organization vacancies. इसका क्या मतलब हुआ कि actual और anticipated? actual मतलब लेट सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ही कोई रिजाइन कर देता है, कोई रिटायर हो जाता है, तो आपको वो सीट, वो पोजीशन फुलफिल तो करनी है. काम तो चलता ही रहेगा, राइट? ऐसा तो नहीं है कि किसी ने छोड़ दिया वो काम करना तो काम बंद हो जाएगा. ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? तो काम चलता रहेगा. उसके बाद क्या होगा? यू नीड टू हायर समवन एल्स. उस जगह पे, उस पोजीशन में किसी और को हायर करना है. तो दैट्स एक्चुअल. और एंटिसिपेटेड क्या होता है? एंटिसिपेटेड बिकॉज कि आपकी एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो एक चीज होती है जिसमें इतने लोग हर साल कंपनी छोड़ के जाते हैं फॉर वॉट एवर रीजन दे हैव. सो दे विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स कॉल्ड एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो. दे विल join somewhere else, they will start something new or whatever the reason is. तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं या फिर
देयर आर मेनी पीपल हु आर नियरिंग देयर रिटायरमेंट एज भी तो आ सकती है कि ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर काम करेंगे. सो यू नीड टू प्लान फॉर एंटिसिपेटेड वैकेंसीज एज वेल. सो दिस इज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट. अगर आपको रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो प्लीज रिवाइंड द वीडियो, समझ आ जाएगी. आई हैव मेड इट क्रिस्टल क्लियर. कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन से. और इसको प्लीज कभी कंफ्यूज मत करना सिलेक्शन से. दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन डिफरेंट होता है. आई होप ये सबको समझ आ गया होगा. नाउ, अब रिक्रूटिंग के कुछ चैलेंजेस होते हैं. ऐसा तो है नहीं रिक्रूटमेंट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस दैट आई एक्चुअली एडवर्टाइज दैट आई नीड दिस मेनी एम्प्लॉयज इन माय ऑर्गेनाइजेशन. तो उसके बाद यू नो एवरीथिंग इज सॉल्व, आपके पास आ गए बेस्ट कैंडिडेट एंड यू hired that particular candidate. But no, that's not the case. There are recruiting challenges. First one, too many or too few applicants. तो क्या हो गया too many है too few applicants है? So firstly, too many applicants will actually lengthen the process. Recruiting एक जो process है that consumes a lot of time and that takes a lot of money. तो इसमें एक लेंदी प्रोसेस है. अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, एक रिक्रूटिंग चैलेंज ये है, बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन या फिर लेट्स सपोज 10 या 15 पोजीशन, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टू गो थ्रू ईच एप्लीकेशन. बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है. तो दैट क्रिएट्स ट्रबल. नाउ टू फ्यू एप्लीकेंट्स क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? बिकॉज आपके पास जो एप्लीकेंट्स आए दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. आपको जैसे लोग चाहिए थे वो तो मिल नहीं रहे. इन लोगों ने अप्लाई कर रखा है विच आर नॉट वेरी सूटेबल फॉर दिस जॉब. तो आपको उन्हीं में से एक को सिलेक्ट करना पड़ा या 10 को सिलेक्ट करना पड़ा बिकॉज आपके पास क्वालिटी आई नहीं. तो टू फ्यू एप्लीकेंट्स can lead to that sort of problem. So that's first challenge, recruiting challenge, too many or too few applicants. Second, organization image. Sir, how organization image could be a challenge? It very well could be. Firstly, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इमेज बहुत डिपेंडेंट है. अगर आप लेट सपोज आई एम एन एचआर मैनेजर इन टाटा, मैं टाटा ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर हूँ. इट विल बी easier फॉर मी टू गेट द higher quality of candidates which are having experience, must be graduated from top universities. For me, then it will be easier to get a good candidate for a vacancy. तो कोई वैकेंसी है टाटा ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोग अच्छे वेल क्वालिफाइड लोग ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे. बट इफ माई ऑर्गेनाइजेशन इज पुअर, राइट, इफ आई एम indulgent बैड practices and certainly I don't have a good reputation in society, तो अच्छे लोग, अच्छे वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स won't apply to for my organization. Or if my organization is new, as an HR manager I have to work hard to make sure that well qualified students actually do apply for the job openings in this particular in my new organization. So this is another recruiting challenge. I hope सबको समझ में आ जाएगा कि क्या एक और challenge है. Organization image भी एक challenge create करता है. Lastly, job attractiveness. So there are certain jobs which you don't want to do, right? ऐसा नहीं है कि सारी jobs ही करनी होती. Even depending upon how much pay is associated with that, right? Let's suppose you are given snake handling job. Snake handle मतलब आपको सांप को हैंडल करना है. तो वो कोई अट्रैक्टिव जॉब नहीं है. आप खुद मन से नहीं करना चाहोगे. आप कहोगे ये कैसी जॉब है, मेरे को नहीं करनी, मैं कुछ और कर लूंगा. सांप को हैंडल करना, आई हैव फियर फॉर स्नेक्स, ये मेरे लिए इट्स नॉट अ गुड जॉब. Let's suppose you have a height fear and you are asked to clean the windows of 50 stories building. तो वो आपके लिए difficult because you have a height fear. तो वो job attractive नहीं है. And that depends कि job attractiveness depends person to person. You may like a job, you may not like a job. So अगर आपकी job बहुत ही wild है, बहुत ही dangerous है, then getting the right set of candidates will be very difficult and you have to compromise with whatever you are receiving. कोई भी कुछ भी मिल रहा है तो you have to compromise with that. आपके पास option ही नहीं है कि you can get a bit a diversified pool of candidates. That's not possible. So these are the few challenges that an HR manager faces. And I hope सबको याद हो गए होंगे. Too many or few applicants, organization image और job attractiveness. इतना कोई confusing नहीं है, बहुत simple straightforward है. And if you have any problem with the pace of the video, you can surely do mention about that in the comment section. Or if you are liking the video, do leave a like so that I get to know that you are liking the content. And sure, do communicate in the comment section as well. As I said, the only way that I could get to know what are you able to understand is through the comment section. So do mention in the comment section as well. As I said, the likes to the view ratio is very less.
right? If your video is getting 100 or let's suppose 200 views, the likes are 5, 10, 15 only. So that's not a good thing. You should try, like if you're watching the content, if you are liking the content, please do leave a like and do share with your friends as well, those who are preparing for UGC net. Now the next thing that you have to prepare is the next thing that you have to know is the sources of recruitment. Sources of recruitment, बहुत important topic है, you must be aware about this. Right, the scope of recruitment process is very wide as the candidates for various jobs are वाइडली स्कैटर्ड. ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक काइंड ऑफ जॉब है, बहुत वेराइटीज ऑफ जॉब होती हैं. तो उसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत वाइड होता है. ऐसा नहीं कि आपको लेट सपोज कि आपके लेवल फॉर फ्रेशर ही जॉब में यू नीड वैकेंसीज, तो बहुत ऐसा है कि सुपीरियर लेवल पे भी, कोई सीनियर लेवल पे भी वैकेंसीज आती हैं, और सबका रोल, जॉब रोल बहुत डिफरेंट होता है. तो उसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी डिफरेंट होगी. सेम साइमल्टेनियस एंड सेम सिमिलर प्रोसेस नहीं हो सकती, राइट? रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी डन थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स. आई होप ये सबको पता हो कि रिक्रूटमेंट कैसे हो सकती है, दो जरिए से हो सकती है, या इंटरनली या एक्सटर्नली, दो ही तरीके हैं. और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है, लेट सपोज आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं कहीं काम कर रहा हूँ एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वहीं से आई वॉज एट अ फ्रेशर लेवल, और कहीं सीनियर लेवल की जो पोस्ट है वो खाली हुई, तो उन्होंने मेरे को ही बोला कि इफ यू वांट टू लीड द टीम, आप सीनियर पोजीशन पे आ जाओ. तो आई एक्सेप्टेड दैट एंड दैट पोजीशन इज विद मी नाउ. तो मैं अब I actually got selected for that place. तो that's internal source of recruitment. और external sources जो होते हैं बाहर से करे जाते हैं, outside the organization. बहुत basic difference है. Internal sources within the organization and external sources outside the organization. I hope difference clear हो. तो sources क्या क्या है internal के? Internal के जो होते हैं, promotion, प्रमोशन हो जाता है किसी का, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल बताया, प्रमोशन, ट्रांसफर, री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज दोस हु हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी सच रीजंस, दे कैन बी एम्प्लॉयड एज वेल. सो दैट्स अनदर सोर्स, राइट? एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हो सकते हैं? एडवर्टाइजिंग हो सकती है, कैजुअल कॉलर हो सकता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, or campus or universities, those you must have experience in your college life as well. तो campus और advertising होगी, right? These are all the and employment agencies as well. तो ये सारे sources of recruitment हैं. I hope सबको clear हो गए हो अब तक कि क्या क्या sources of recruitment है, ठीक है? These are the scope of sources of recruitment. So internally होता है, externally होता है. Now the next thing that we have to discuss कि इंटरनल सोर्सेज क्या क्या है, कौन कौन से हैं, और आपको याद होने ज़रूरी हैं. तो फर्स्टली जैसे मैंने बोला, ट्रांसफ़र. लेट्स सपोज आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ दैट ऑपरेट्स इन द गुड़गांव, गुरुग्राम ऑफिस, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ. नाउ मेरा ट्रांसफ़र कर दिया है इनटू सम डिफरेंट ब्रांच दैट इज ऑपरेटिंग इन नोएडा. अब ट्रांसफर में ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांसफर करने से क्या मेरी पे इंक्रीज हो रही है, तो वो उसको ट्रांसफर बोले. नहीं, ट्रांसफर होता है मतलब सेम लेवल ऑफ वर्क. मैं अगर लेट सपोज मैं ऑडिट प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ, और मैं फ्रेशर हूँ ऑडिट प्रोफाइल में, तो मैं गुड़गांव में भी जिस प्रोफाइल पे काम कर रहा था, मैं नोएडा में भी सेम प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ. प्रोफाइल में जो काम है सेम है, ना ही मेरा पे इंक्रीज हुआ है, ना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हुई है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे भेज दिया है. दैट्स ट्रांसफर. तो ट्रांसफर एक डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी हो सकता है, एक ब्रांच टू ब्रांच भी हो सकता है. तो आई होप ट्रांसफर का मतलब पता चल गया हो कि ट्रांसफर क्या होता है. ऐसा नहीं कि ट्रांसफर और प्रमोशन सेम है, प्रमोशन एक डिफरेंट चीज होती है. ट्रांसफर होता है हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, आप सेम लेवल पे ही रहते हो, आप कहीं दूसरे लेवल पे नहीं जाते हो. नाउ प्रमोशन, प्रमोशन इज द ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ जॉब दैट कैरीज हायर पे एंड स्टेटस. तो आप प्रमोट होते हो. लेट सपोज मैं काम कर रहा था एट अ ऑडिट प्रोफाइल इन सम कंपनी, तो मैं वहाँ पर फ्रेशर था. मैंने 2 साल काम करा, मेरी प्रमोशन हो गई, मेरा इंक्रीमेंट हो गया, मेरी सैलरीज बढ़ गई, मेरी ड्यूटीज बढ़ गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई. तो मेरी ड्यूटीज बढ़ी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा पे भी बढ़ गया. सो दैट्स बेसिकली प्रमोशन. तो मुझे प्रमोशन हुआ. सो दैट्स वर्टिकल शिफ्टिंग. वो वर्टिकल शिफ्टिंग होती है, आप ऊपर जाते हो, राइट? ऐसा भी होता है कि री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज. लेट सपोज मैं किसी कारणों से आई हैव टू लीव माई जॉब. Could be because of any reason, because of something not good at my personal life, and so I have to leave and leave a job in between. But in case, because my work was good, my employer actually asked me to join the organization again. My employer
actually asked me to join again. So in this time, what I did, right, that's basically a case of re-employment of ex-employees. So I was working in that organization. So I was working in that organization. Now, I'm provided with an opportunity to work again. I left that job because कुछ personal reasons थे, but now I am back at doing my job again. So this is another internal sources of recruitment. So there are three internal sources of recruitment. First is promotion. First is transfer. Second is promotion. Third is री-एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्रमोशन ट्रांसफर ऊपर नीचे कहीं भी कर दो, बस तीन ये याद होने चाहिए. तो आई होप ये बहुत क्लियर हो गया हूँ कि क्या क्या है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. नाउ कमिंग टू द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ज़्यादा है, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है. उससे पहले विल डिस्कस कि क्या मेरिट्स क्या है, कि इंटरनल रिक्रूटमेंट का फ़ायदा क्या है, हमें क्यों करना चाहिए इंटरनल रिक्रूटमेंट पे focus. So internal candidates have intimate knowledge of the organization structure, can handle the new jobs easily. तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं कहीं काम कर रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे पता है कि काम कैसे होता है. मुझे मेरा काम पता है, मुझे पता है और सीनियर लोग क्या काम करते हैं, कैसे प्रोसेस है, कैसे कम्युनिकेशन जाती है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे. तो आई नो द वेयर अबाउट हाउ टू डू द थिंग्स. सो आई हैव द नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So certainly if I am asked to be handle something new, I'll be ready for that because I know how the things works in the organization, right? So first is the internal candidates have intimate knowledge. मुझे पता है काम कैसे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे काम चलता है. So I'll be a better candidate. मैं एक अच्छा कैंडिडेट होऊंगा. लेट्स सपोज कल को if I have to lead in the company. Promotion will increase the morale of the employees. मैं कहीं काम कर रहा हूँ और वहाँ पे प्रमोशन हो रहा है इंटरनली, तो मैं खुश हूँ कि कल को मेरा भी प्रमोशन होगा, राइट. तो मेरा मोराल बूस्ट हो जाएगा कि यार मैं अभी इतना कमा रहा था और कल को मैं इतना ज़्यादा कमा रहा हूँ. और लाइक देयर इज अ पे इंक्रीज, मेरा ज़्यादा पे इंक्रीज हुआ है, तो मेरा मोराल बढ़ेगा कि मैं और अच्छा परफॉर्म करूँ, राइट. सो दैट्स इंक्रीज द मोराल ऑफ द एम्प्लॉयज. प्रमोशन विल इंश्योर सिंसियर एफर्ट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज बिकॉज दे नो दे मे राइज टू सीनियर पोजिशन बाय प्रमोशन. तो प्रमोशन में एक और फायदा ये है कि मेरे को पता है कि यार अगर मेरे सिंसियर एफर्ट्स है ना वो नोट करे जा रहे हैं, तो मुझे प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा. ऐसा नहीं है कि किसी बाहर से किसी को लेंगे, मेरी कंपनी में मेरे को ही प्रमोट करा जाएगा इफ आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दैट. द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग द इनसाइडर्स फॉर द सीनियर पोस्ट विल बी लेस. क्यों कॉस्ट क्यों कम होगी, किसी अंदर के आदमी को ट्रेन करा जाएगा बिकॉज सर्टेनली यू नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप वहाँ पे काम कर चुके हो, आपको पता है कि कैसे क्या करना है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. बट स्टिल आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बिकॉज आप सीनियर पोस्ट हैंडल करोगे तो बहुत एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है. तो उस सिनेरियो से डील करने के लिए आपको ट्रेन उसमें जो कॉस्ट लगती है वो काफ़ी लेस होगी बिकॉज इंटरनली ही रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो इंटरनल वाले को थोड़ा पहले से नॉलेज रहती है. Reliance on internal sources will enable the enterprise to make the best use of capabilities of employees. So आप internally ही रिक्रूट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, तो आपको पता है कि ये इंसान इस चीज़ में, इस डोमेन में बहुत अच्छा है, तो हम इसको यहाँ प्रमोट करते हैं बिकॉज दे आर वर्किंग विद यू, यू नो हाउ दे परफॉर्म. सो यू हैव an image in your minds that how we can tap into their potential capabilities, right. The cost of internal recruitment is very low. कॉस्ट बहुत सस्ती है बिकॉज आपको इनवाइट नहीं करने इतने सारे एप्लीकेशन, आपको गो थ्रू नहीं करना इतने एप्लीकेशन से, फिर इंटरव्यू नहीं करना, टेस्ट नहीं लेना, आपको पता है ये इंसान कर सकता है, तो कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ती है internal recruitment के. So these are the few merits of internal recruitment.